Hello to all my dear students of class 4. Today we are going to study chapter number 12, Symmetry and Patterns. So let's look on the learning objectives. After studying this chapter, you will be able to identify the line of symmetry in objects. So students, this symmetry and patterns is not new to you. You have already studied this in class 3rd. So we will study more about this chapter, okay? And the second learning objectives, you can see identify and analyze the patterns around us. Okay, what are symmetry and patterns we will study first, and then we'll see what are the things which we see around us that's comprising of this symmetry and patterns. Okay, through practical expectations we will see this. A third one is recognize pattern in numbers. Okay, we will see that patterns and numbers, how they are uh, accordingly in the maths trick. So here are students, you can see 4 students are there who are drawing some figures. Okay, and they are attractive figures. They are using colors, they are using pencils, they are using scale, they are using different shapes to draw all this, and they have a specific pattern, they have a specific like symmetry. So what is symmetry and patterns? Basically uh, it is the sequence. Okay, like for example, it is a sequence of a particular design, okay, which is made in sequence or using of particular or different types of shapes, and uh, drawing it in geometrical form. Okay, and doing it according to the things. So let's see over here. So these children are making beautiful symmetrical designs using different objects. Identify the symmetrical designs in the picture and redraw them in your exercise book. Okay, so you can do this in your exercise book. Let's do this revision exercise. So students, we have here very interesting questions, and the question is, draw the other half of each symmetrical shape. One has been done for you. This is quite simple, students. You just have to draw the other half. Okay, like this is made. This is the example already given to you, so you can use any color and you can draw. Okay, for example, I'm drawing this even. Okay, like this and like this. Okay, I'm not able to make it here perfect. I hope you can make it as perfect as possible. Okay, so like this few examples I will show you how to make, and then you can also make. Okay, not so good. I'll try once again. Okay, like this. So you have to make just as perfect as this side is. Okay, again this one you can have a look like this. So like this you will make. This is an exercise in your, you have to do in your book. Okay, second is the dotted line on each letter a line of symmetry? Yes or no? So students, symmetry means complete half. Okay, if it is not the left and right side is not the same, then that is not half. Okay, so you can see here C, this one, this is complete half, so you'll write here yes, it is complete half. This is student C, you can see this side is different and this side is different, so this is not a symmetrical line, so we'll write no. Similarly in this it is yes, and then this is no, this is yes, this is no. Okay, I hope this is clear also. Third one is observe the number patterns and complete them. So students, here we have number patterns. Number patterns students क्या होता है, इसमें हम पहले स्टार्टिंग के सीरीज़ को चेक करते हैं, जैसा कि आपने क्लास 3rd में भी इसको पढ़ा है अच्छे से, कि हम स्टार्टिंग के सीरीज़ को पहले चेक करते हैं कि इसमें ये जो गैप हुआ है नंबर का, ये जो गैप है या फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है ये इसके बेसिस पे कैसे आ रहा है, फिर ये नेक्स्ट नंबर उसके बाद आने वाला ये सेकंड नंबर के बेसिस पे कैसे आ रहा है, ये फोर्थ नंबर जो है ये नंबर के बेसिस पे कैसे आ रहा है. ओके, लाइक दिस वी विल सी ऑल दिस थिंग्स.
So as we are seeing here, 24 plus 3 equals to 27. Then 27 plus 3 equals to 30. 30 plus 3 equals to 33. So 3 numbers it is adding. So next number will be 33 plus 3, that is 36. Then again 39 will be the next number, and then 42. Okay, like this. So students, like this you have to check it out. Okay, and this is your own work, you have to do it. Even the solutions I've given in PDF, so no need to worry. If you don't understand anything, you can ask me on the Zoom class. Okay, so Zoom classes are always doubt clearing classes, students. Okay, for the Subhash Chandra Academy students only available. Okay, so you can come there, and I can then tell you where is the difference here. So students, please check it out. You have your own work to do, and you have to see wherever the questions answer are there. Okay, next question, let's see. Okay, now we are coming to the exercise part, so let's move on to the exercise part. Okay, this exercise is easy, then I will explain you what are the reflected and the non-reflected things. Okay, so exercise 12a, observe the following figure carefully and find whether they are symmetrical or not. Okay, the same as the earlier one in the revision we have done. So this is also easy, so let's do this also. This one is yes, because this is half cutting complete half. This is no. This is yes, exactly yes. This is yes. Okay, this is a no, because if it would have cut from here, it would have been yes, as earlier we have done division. But this is not cutting half. Okay, so this is no. This is yes, because this is complete half. Okay, this is no, because it is not the same as the both. This one is yes. Okay, so students, now in question number 2, what you have to do, write all the letters in capital and check whether they are symmetrical or asymmetrical about any line of symmetry. Okay, let's see now what are the concepts after this. So students, what is symmetry? Look at the peacock feather. You can see the peacock feather over here. Doesn't it look beautiful? It looks beautiful because it is symmetrical figure. Okay, what is symmetry? That the left and right complete half we have here as the same, and you can see 3 figures are there on the left hand side, and the right hand side it is completely same. Okay, so if we fold the above figures along the dotted line, one part will exactly fit over the other. Such figures are called symmetrical figures. So एकदम फिट हो जाता है एक के ऊपर एक, है ना. अगर आप इसको फोल्ड भी करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट ये बैठेगा. सो दिस इज ओनली सिमेट्री. ओके, एंड द डॉटेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. आप सोच रहे होंगे डॉटेड लाइन ये सब क्या है. यही लाइन ऑफ सिमेट्री कि एकदम इसी लाइन से एग्जैक्ट कट करते हुए बोथ द लाइन्स आर अपार्टिंग फ्रॉम ईच अदर. ओके okay, so are all figures symmetrical? No, some figures like the ones given here are not symmetrical. These are called non-symmetrical figures or asymmetrical. Okay, or asymmetrical figures. Okay, you can see here this rose and this hand, this is completely different. Okay, so इसको हम asymmetrical कहते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये था asymmetrical, whether they are asymmetrical or symmetrical. ओके, सी. सो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन A to Z इन योर कॉपी. आपको A to Z पूरा कॉपी में लिखना है. ओके, और आपको ये बताना है कि ये फिगर पर्टिकुलर ये कहीं से ये हाफ में कट हो सकता है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेल यू हियर A इज सिमेट्रिकल. ओके, बिकॉज इट इज़ कटिंग फ्रॉम हाफ. B कैन बी कट फ्रॉम दिस साइड. ओके, तो कहीं से भी इधर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इफ़ इट इज़ कटिंग इनटू 2 हाफ्स देन इट इज़ सिमेट्रिकल. ये पूरा सिमेट्रिकल होगा. लेकिन अगर नहीं कट होता तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा. जैसे C है तो C कैन बी कट. D येस कैन बी कट फ्रॉम दिस साइड. E कैन बी कट. फिर F कट नहीं होगा. ओके, तो F क्या हो गया हमारा एसिमेट्रिकल फिगर. ओके, F कैन नॉट बी कट. मैं आपको यहाँ शो कर दे रही हूँ यहाँ पे फिर से.
me show you over here. This fall A to E was symmetrical and F was not symmetrical. तो F को हम कहीं से भी ऐसे कट नहीं कर सकते कि वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल हो. ओके, सो ये F जो है एसिमेट्रिकल हो गया. ओके, सो इसी तरह से आपको A to Z पूरा लिखना है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है. सो आपको एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल लिखना है, या येस और नो भी लिख सकते हैं. ओके, third question in exercise. First, check whether or not the given images are mirror images of each other. Now reflection. Now we'll see reflection. Student, जब आप शीशे में कोई चीज़ देखते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ उल्टी दिखती है ना. तो यही केस आता है स्टूडेंट जब हम सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन सिमेट्री जब हम देखते हैं. तो रोहन draws a picture and puts a mirror next to it. What does he get? He gets an image similar to his drawing. The mirror image is the reflection of the image. हमेशा उसका रिफ्लेक्शन होता है. और जैसे कि आप जब लेटर्स को लेके जाएंगे मिरर के सामने, आप कभी शीशे से ट्राई करिएगा, जब आर को आप लेके जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, मीन्स जो लेफ्ट साइड रहता है वो टर्न हो जाता है राइट साइड में. ओके, अपसाइड डाउन. और लाइक फॉर एग्जाम्पल, if you are taking B in front of the mirror, then it will turn to like this. लेफ्ट साइड से हो जाएगा. A जो है वो वही रहेगा, A का A ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड से ये सेम है. तो कुछ फिगर स्टूडेंट्स होते लेटर्स होते हैं जो सेम रहते हैं. ओके, और कुछ जो है चेंज हो जाते हैं. तो आपको पर्टिकुलरली ये सब जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन सब फिगर्स को आपको ट्राई करना है. आप इसमें अपने मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मिरर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, क्वेश्चन नंबर 5. आप देख सकते हैं, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. ओके, यू कैन यूज़ द मिरर फॉर दिस, and you have to do this whole exercise in the copy. This is very important for you for exams. Okay, then coming back again to the next question. Now we have here fill in the blanks. Okay, so कभी भी किसी फिगर के स्टूडेंट्स बहुत सारे सिमेट्रिकल लाइंस हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है, अ लाइन ओ हैज़ डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कितने लाइन्स हैं सिमेट्री के. ठीक है, और लेटर जे में कितने लाइन हो सकते हैं सिमेट्री के, रेक्टेंगल में कितने हो सकते हैं. तो अ फिगर कैन हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, हमेशा कोई भी फिगर का एक लाइन से ज़्यादा सिमेट्री का लाइन हो सकता है. ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है ऑलरेडी, लाइन्स ऑफ सिमेट्री. द टॉपिक्स कम्स अंडर द लाइन्स ऑफ सिमेट्री. सम फिगर्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑफ कोर्स, लाइक अल्फ़ाबेट ए. अल्फ़ाबेट ए में हमेशा एक ही लाइन होती है सिमेट्री की, फ्रॉम द अबव. ओके, सो एंड maybe some other figures doesn't have any more than one line of symmetry. So for example, आप देख सकते हैं स्क्वायर है, मान लो एक फिगर है ये, तो इसमें अब 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ये हर 4 जगह से कंप्लीट 4 स्पेस से 4 जगह से ये इक्वल में कट हो सकता है. ओके, अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो इधर से भी कट कर सकते हैं, अगर ये नहीं बनाएंगे तो इधर से भी आप कट कर सकते हैं इक्वल हाफ में. तो यही केस है स्टूडेंट्स, और आप कॉर्नर से भी इसको कट कर सकते हैं. तो ये फिगर ही स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप इसको कहीं से भी इसको 4 साइड से 4 कॉर्नर साइड से आप इसको कट कर सकते हैं. तो इसमें कंप्लीट 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, देयर आर 4. और अब ये नेक्स्ट फिगर देखिए, इसमें सिर्फ 1 है, अब सिर्फ सामने से इसको कट कर सकते हैं. So different shapes are there. So based on different shapes, we have different one line or more than one line of symmetry. So let's look over here in this question, as we have already seen what the letter O. Okay, so the answer of this is infinite. So infinite means students कि हम बता ही नहीं सकते हैं कि O में कितने line of symmetry हैं. क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि सर्कल में हम कहीं से भी ले सकते हैं. ओके, तो ओ में इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इधर से भी ले जाओ, इधर से भी ले जाओ, इधर से भी, और आपके पास इसमें कहीं से भी रूल्स नहीं है कि आप कहाँ से लें. तो हर साइड से स्टूडेंट जब सर्कल है तो एवरीवेयर इट इज़
So students, already I have told you this, infinite, it can come from anywhere, so that's why it is infinite. So endless number of line of symmetry. Okay, this is the meaning of infinite. Second one, the letter J has no line of symmetry. इसमें कोई line होती ही नहीं है. Okay, not from horizontal side, not from vertical side. You cannot have any line of symmetry in letter J. A rectangle has 4 lines of symmetry, and last one, a figure can have more than one line of symmetry. So students, this was all about the symmetry. First exercise we have done 12a. Let's move further. Okay, then question number 6 also, the answer will be infinite, as I have told you. Okay, the O and the circle, these circles have always infinite number of lines of symmetry. So let me write over here infinite again, infinite. Okay, infinite. Then moving on to this one, we have to draw this line of symmetry in this. Okay, in this figure B, you can cut it from two sides. Okay, in letter O you can cut from many sides, so it has been endless. Okay, and H you can cut from the middle, and let me try from the middle. Yes, somewhat, yeah, it is correct. So students, this was all about the first exercise. Let's move on to further number patterns. Okay, so students, number patterns, this is very interesting topic, because this is very new. एंड स्टूडेंट्स, इस नंबर पैटर्न में ये जो रूल्स हैं आपको लर्न करने होंगे. ठीक है, हमारे पास इस नंबर पैटर्न्स में फर्स्ट है पैटर्न्स इन एडिशन. ओके, एडिशन में कौन से पैटर्न्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स आप मैथ्स के ट्रिक के तरह भी आप समझ सकते हैं इसको. ठीक है, तो फर्स्ट है सम ऑफ 2 consecutive नंबर्स, सेकेंड इज सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स, थर्ड है सम ऑफ 4 consecutive नंबर्स, और फोर्थ है सम ऑफ 5 consecutive नंबर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स ये एडिशन का हो गया. ये 4 आपके consecutive नंबर्स के सम लेने के लिए आपके ये 4 पैटर्न्स हो गए. सेकेंड थिंग इज पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में कौन सा पैटर्न है, इसमें बहुत एक सिंपल ट्रिक आपको सिखाई गई है, दैट वी विल सी फर्दर. एंड देन वी हैव वन मोर पैटर्न टू गो, दैट इज डिवीजन पैटर्न. ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पैटर्न. डिवीजन इज ऑल्सो एज सेम एज द मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो आपको पता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सेम बिकॉज हैव द को रिलेटेड फैक्ट्स. जैसे मल्टीप्लिकेशन को आप डिवीजन में चेंज कर सकते हैं, उसके फैक्ट्स हमेशा वेरी करते हैं. ओके, दे टैली ईच अदर. देन वी हैव हियर दिस ग्रिड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पढ़ने क्या वाले हैं. सो दिस आर पैटर्न्स, as you can see. Sum of consecutive numbers when the number of terms in the series is odd, when it is even. So आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एडिशन के पैटर्न से, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो स्टूडेंट्स याद रखिए, टॉपिक वाइज हमको क्लासेस को लेना है, पढ़ना है, तो उसमें नंबर पैटर्न्स है. ओके, सो पैटर्न्स इन एडिशन. और स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव. ओके, द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस और लगातार. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस. फर्स्ट सपोज करिए 1 2 3 या 1 and 2, मतलब 1 के बाद 2 आता है, तो स्टूडेंट्स यही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गया. ओके, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें लगातार के नंबर्स लेने हैं या कंटिन्यूअस नंबर्स लेने हैं. For example 15 and 16, these are 2 consecutive numbers. अगर 3 consecutive numbers की बात करें तो 15 से अगर स्टार्ट करें तो 15 16 and 17. Okay, then 18 19 20, 3 consecutive numbers. Okay, taking 4 consecutive numbers, we can take any number from anywhere. If you start from 1 1 2 3 4 consecutive numbers, 1 2 3 4 5 consecutive numbers.
6, 1 2 3 4 5 6 कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो स्टूडेंट कंजिक्यूटिव का मतलब ये होता है जब हम टू नंबर्स का कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम करते हैं तो वो हमारा फर्स्ट नेक्स्ट ऑड नंबर होता है। So next odd number means 1 plus 2 is the next odd number, that is 2. After 2 it comes 3. Then if we will start again from 2, then 2 plus 3 if we will take the second consecutive number is 3, then the next odd number we will have. So after 3 the next odd number is not 4, 4 is even number. Okay, so next odd number is 5. So you can see here we observe that the sum is an odd number and the difference between two consecutive sums is 2. ठीक है, हमेशा टू consecutive sums जो होते हैं उसके बीच में डिफरेंस जो आता है वो हमेशा 2 आता है। फॉर एग्जांपल 5 - 3 ये हमेशा 2 आएगा। 7 - 5 2। ओके, सो consecutive नंबर्स वी आर एडिंग लाइक दिस। अब स्टूडेंट जब हम एक्सरसाइज देखेंगे तब हमें एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन से आपको रिलेट करके भी बताऊंगी तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द सेकेंड वन इज, इसमें रूल्स है स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें, प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सेकेंड इज सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स। अब स्टूडेंट्स 3 consecutive नंबर्स का रूल है कि 1 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 + 2 + 3, then 2 + 3 + 4, then 3 + 4 + 5, then the middle number, okay, we have to multiply the middle number by 3 always. Okay, this is the middle number, we are multiplying by 3. This also we are multiplying by 3. Middle number is there, we are multiplying by 3. Okay, like this. So as we multiply, we have 2 3s are 6 in the answer. Okay, then 3 3s are 9, then 4 3s are 12. Like this students, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 4 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 4 + 5 + 6। ओके, 4 + 5 + 6। तो हमको यहाँ पे प्लस करके नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, हमें रूल से इसको कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाना है। तो हमको पता है जब कंटिन्यूस कभी भी नंबर्स होंगे आपके पास, जब भी आपको प्लस करने को मिलेगा तब आप सीधे सीधे आप इसको मिडिल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, आप सोचिए 51 + 52 + 53, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत ईजी है। ओके, हम लोगों ने बहुत ईजिली इसको जल्दी जल्दी करना सीखा है। सो 2 2 जा 4 लिख दिया आपने और 5 2 जा 10 लिख दिया। देखिए कितनी जल्दी ये 104 प्लस हो गया। अब आप इसको प्लस करके भी देख लीजिए, you can see by adding also how much it is coming. Okay, okay students, so yeah, we are multiplying by 3 exactly, actually sorry, we are multiplying by 3. So 3, when it is multiplied by 3 we will have 3 2 ja 6, then 5 3 ja 15. Okay, as we are taking in 4 + 5 + 6, here we have to do multiply by 3 as I've told you. So 5 3 ja 15. Similarly in this also we have taken 52 multiplied by 3. Okay, so 3 2 ja 6 and 5 3 ja 15, so 156. Then we will add this 51 52 and 53, and we are having 2 + 3 is 5 + 1 6, then 6 5 3 ja, and then again 15 156. See how quickly we are doing this. Okay, so this is the reason why we are learning this. So instead starting from 4, then if you will take starting from 5 + 6 + 7, then again 6 will be multiplied by 3. So 3 multiplied by 6 or 6 multiplied by 3 6 ja, or 6 3 ja will be 18. Similarly, okay, very easily you have done, and this will be like continued forever, like, okay. So any 3 consecutive numbers, students, if you are taking the middle number, you have to take the middle number and multiply by 3, the answer will come. Third one, sum of 4 consecutive numbers. ठीक है, 4 consecutive numbers को जब हम प्लस करते हैं तो 4 consecutive numbers में स्टूडेंट्स हमें जो मिडिल के 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब कभी 4 नंबर्स होते हैं तो जो मिडिल की 2 नंबर्स मिडिल में हमेशा होते हैं।
तो 2 नंबर्स को हमें पहले प्लस करना है आपस में. वी हैव टू add both the numbers, then multiply by 2. Then you will have the answer. Like so 2 plus 3 is 5, then 5 multiplied by 2. Okay, क्या करना है आपको, मैं फिर से बता दे रही हूँ. जब आप कभी 4 consecutive नंबर्स लेंगे तो जो मिडिल नंबर होंगे, 2 मिडिल नंबर्स, you have to add them. Add and multiply by 2. You have to multiply by 2. Then you have to add this also. You have to add and then multiply by 2. You will have the answer. Now you can check. Let's check also. 2 plus 3 is 5. 5 to the 10. You will have the answer. Correct. 3 plus 4 7. 7 multiplied by 2 is 14. Then again 4 plus 5 is 9. Then 9 multiplied by 2 is 18. Next number we will take starting from 4. 4 plus 5 plus 6 plus 7. ओके, तो हमको प्लस नहीं करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. 5 plus 6 is 11. 11 2 जा 22. तो यहाँ 22 आंसर है. लेट मी राइट विथ डिफरेंट कलर, एनी अदर कलर, so that you can be clear about this. Write the complete solution of this. How you will do in your copies, and you will do 5 plus 6 11. 11 multiplied by 2 is 22. Okay, so students, when an exam it will come, you will not plus this, you will not plus this, you will not add it one by one. You will use this method जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है. You will use this method. You will add the middle two numbers, then you will multiply by 2. Always remember, ये हमेशा रूल होता है 4 consecutive numbers में. इससे आपको properly learn करना है. You have to learn it, otherwise you will not understand. Okay, this is your work, student, this is your homework. You have to learn this rules, then only you will be doing the exercises very well. Okay, now the next one is fourth topic, that is 5 consecutive numbers. Okay, 5 means 5 लगातार के numbers होते हैं. तो students, इसमें rule क्या है? The rule is that we are having the first multiple of 5. Okay, for suppose any multiple of 5 we are taking. Okay, so 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ये 15 होता है. तो अगर हम जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट हमारा 5 का मल्टीपल हम ले लेंगे, जैसे कि उसके बाद आएगा 20. ओके, देन अगर ये 3 से शुरू हो रहा है, फिर 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, then again next multiple of 5. Okay, in the table of 5 we will have 5 3 is 15. ठीक है, 5 4 20, 5 5 25. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि ये स्टार्टिंग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि नहीं होता है. ओके, जहाँ से भी शुरू हो रहा है, ये सपोज 15 से शुरू हुआ है तो हम 15 से ही शुरू करते हुए इसको करेंगे. ओके, तो ये कंटिन्यूसली 1 से अगर स्टार्ट है तो ये जब आगे बढ़ता जाएगा तो हमारे उसके साथ साथ मल्टीपल्स के नेक्स्ट लेवल बढ़ते जाएंगे. तो जैसे अभी 15 है, इफ़ इट इज़ 15 देन द नेक्स्ट लेवल विल बी 20, देन 25, 30, 35 एंड सो ऑन. सो लाइक वी आर टेकिंग हियर 15, then the next number we have here 20. If starting from 3 we have here 25, and then 4 से अगर शुरू करेंगे 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 30. देन अगर हम 5 से शुरू करेंगे 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, तो ये हो जाएगा आंसर 35. अब हम शुरू करेंगे अगर 6 से, 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 40. like this students you have to solve these questions. Okay, next is here we have having patterns in multiplication. This is also very interesting. Okay, before doing this let's do the exercise, so that through that example you can understand the exercise also. Okay, let's come on the exercise. Let's do the exercise here, so otherwise you cannot forget whatever we have studied. So here we are having exercise 12b.
So starting from question number 1 A. So 1 + 2 स्टूडेंट्स ये हमारे उसमें एग्जाम्पल में भी था, तो ये 3 हो गया। अब 2 से शुरू हो रहा है तो ये नेक्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा 5। नेक्स्ट ऑड नंबर हेयर 3 से स्टार्ट करते हुए 7, देन नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिलअप करना है, तो ये हो जाएगा 5 + 6। तो 5 + 6 लेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा 11। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 6 + 7, नेक्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा 13। ठीक है, ये फिनिश हो गया हमारा, दिस इज फिनिश्ड। देन B1, लेट्स सी B1 ऑल्सो। दिस इज 3 consecutive नंबर्स। तो स्टूडेंट 3 consecutive नंबर्स का रूल अगर आपको याद होगा, क्या है रूल इसका? व्हाट इज द रूल? एनीबडी रिमेंबर्स? द रूल वॉज स्टूडेंट्स कि मिडिल नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्टली विल मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 3 जा यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया। अब इसके आगे की सीरीज़ हमको खुद से लिखकर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हो 3 से, 3 + 4 + 5। ओके, तो 4 3 जा यहाँ पे हो गया 12। ओके, देन 4 + 5 + 6। ओके, 4 + 5 + 6। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जहाँ हो गया 15। देन नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हम लेंगे 5 से स्टार्ट करते हुए, 5 + 6 + 7। तो ये 6 3 जा 18। ओके, देन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 + 7 + 8। तो 7 3 जा 21। तो इसी तरह से हम जब 7 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे 8 से शुरू करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स एंड यू हैव डन इट, यू कैन डू दिस। लेट्स लुक ऑन टू नेक्स्ट वन, 4 consecutive numbers। 4 consecutive numbers में रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? वी हैव टू add the middle 2 numbers then multiply by 2. So 2 + 3 5, 5 + 2 10। ठीक है, 4 + 5 9, 9 2 जा 18। okay, like this, and then again we will start from the third one. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक चीज़, एक डिफरेंस यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे 2 से शुरुआत नहीं हुई है, यहाँ पे 3 से शुरू है। तो हम थ्रू 3 को नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे इसके आगे से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम 2 को नहीं देखेंगे। तो 4 + 5 + 6 + 7 ले लेंगे। तो ये मिडिल नंबर 6 + 5, 5 + 6 11, 11 2 जा ये हो जाएगा 22। फिर यहाँ पे 5 से शुरू करेंगे, 5 + 6 + 7 + 8। ओके, तो इसमें 6 + 7 क्या हो गया 13, 13 2 जा 26। ओके, then we will start from 6 here. So in the same way, in the same rule you will solve this. I hope you have understood. Okay, D में क्या करना है हमें? अगर 2 से शुरू है तो ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट स्टूडेंट्स हमने किया था, ये 15 था। उसके बाद 3 का नहीं दिया है। अब देखिए, अगर 3 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम लेते हैं 25, लेकिन यहाँ 4 से स्टार्ट है, तो 25 को स्किप करके हम लेंगे 30। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 से स्टार्ट है, ओके, और यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट नहीं है। तो अगर 3 से स्टार्ट होता, ओके, अगर ये 3 से स्टार्ट होता, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा होता 25। ओके, लेकिन ये 4 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट नहीं है, तो हम इसको लेंगे यहाँ पे एस्केप करके लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30। फिर सिमिलरली आप इसको भी ले लेंगे, इसके आगे के लिए 5 से स्टार्ट करते हुए, 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 35। ओके, 35। देन स्टार्टिंग फ्रॉम 6 + 7 + 8
प्लस 9 प्लस 10। ओके, तो ये नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 40। ये आंसर हो जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग अपनी बुक में प्रॉपरली इसको लिख लीजिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव हियर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? जब हम 2 कंटिन्यूस नंबर्स को लेते हैं या 3 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूस नंबर्स को लेते हैं जो कि सेम हो, जैसे 75 मल्टीप्लाइड बाय 75, 135 मल्टीप्लाइड बाय 35, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, और जिसके वंस के प्लेस में 5 आता हो। ठीक है, कंडीशंस 2 है हमारी कि नंबर दोनों के सेम होने चाहिए जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं, और एक और कंडीशन है कि उसके वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए। तो रूल्स आगे आपके लिए ये हैं। द रूल्स आर, इफ़ यू टेक द एग्जांपल 25, दैट 5 से सबसे पहले आपको यहाँ पे 25 लिख लेना है टू हैव द डायरेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे एक और भी एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको क्लियर होता रहेगा। मैं ले रही हूँ 85 मल्टीप्लाइड बाय 85। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, इसमें भी वंस प्लेस पे 5 है। हेयर ऑल्सो इन द वंस प्लेस इज 5। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको यहाँ 25 लिख देना है। 5 5 जो 25। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है, वो जो फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 का आपको सक्सेसर लेना है और सक्सेसर से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिख देना है। सो 2 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मीन्स द नंबर विच कम्स आफ्टर। ओके, सक्सेसर मीन्स आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, द नंबर विच कम्स आफ्टर द नंबर। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 8 का सक्सेसर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का सक्सेसर 3 हो जाएगा। ओके, तो हमें 8 को, इस नंबर को उसके सक्सेसर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सक्सेसर 9 है तो 8 9 जा, और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है इसके आगे। तो 7225 ये आंसर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम 2 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, 75 मल्टीप्लाइड बाय 75। तो सबसे पहले 25 लिख दिया गया है, और फिर जो फर्स्ट नंबर है जो कि 7 है, उसका सक्सेसर 8 है, तो ये 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 8 जा आ गया 56। ओके, 7 8 जा विल बी 56। तो ये 56 और 25 ये फाइनल आंसर है। विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, हम सिर्फ इसको एक ट्रिक से, एक रूल से कर रहे हैं। सिमिलरली 135 मल्टीप्लाइड बाय 135, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 25, और फिर उसके बाद 113 को, जो फर्स्ट नंबर है, उसको उसके सक्सेसर से 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको करना है। लेट मी शो यू। यस, वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 2, 35 मल्टीप्लाइंग बाय 35, वेरी इजी। लेट्स डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो 5 5 जो सबसे पहले लिख दिया हमने 25, फिर 3 का जो सक्सेसर है वो 3 4 है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देन अगेन यहाँ पे हम भी करते हैं ये 5 5 जो 25, और फिर 4 का सक्सेसर 5 है, 4 5 जा, यहाँ ले लेंगे हम 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो नाइस ना स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिक हमेशा याद रहेगा, तो हम हमेशा कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजी, यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी गिवन है। ओके, आपको ये पैटर्न को करना है सॉल्व। 12 + 3 आप लिखेंगे यहाँ 13, 15 + 1 यहाँ हो गया 16, ये 13, और फिर उसको प्लस करके आप ऊपर लिख देंगे। सिमिलरली 9 + 8 इज 17, एंड 8 + 6 विल बी 14, और 17 और 14 को फिर आप प्लस करेंगे और ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे 6 लिखा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पे आप लिख देंगे 15, 3 6 जा 18 लिखा है, उस तरह से 4 5 जो यहाँ पे होगा 20।
मैंने आपको स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके बता दिया। अब आप लोग को इसी टाइप के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग रेडी रहिएगा सॉल्व करने के लिए। वी विल गिव easy questions students, we make it sure we will give you easy questions, so you don't need to worry. So students, you are seeing here, so students, rest of the questions whatever is left after patterns in multiplication, we will see in the next volume. Till then students, bye bye. Please practice these questions. Have a nice day.